Hello and welcome students. My name is Dr. Vibha Srivastav. Today I am going to start Module 1 of the subject Energy and Environmental Engineering. Energy and Environmental Engineering इंजीनियरिंग स्ट्रीम का एक सब्जेक्ट है जो कुशलता से ऊर्जा का उपयोग करना और पर्यावरण को कंजर्व करने की टेक्निक्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। हम सभी जानते हैं एनर्जी इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू लिव। दैट मीन्स एनर्जी इज कनेक्टेड टू ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। Human beings have needed and used energy at an increasing rate for their sustenance and well-being. We all know energy is defined as the ability to produce change or do work. यानी कि ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है और ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य कई मेन कार्य करता है, जैसे energy produces light, energy produces heat, energy produces motion, energy produces sound, and energy powers technology. Energy is a physical scalar quantity. One form of energy may be converted into another without violating law of thermodynamics. There are many different forms of energy like kinetic energy. मीन्स एनर्जी ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी किसी भी वस्तु की गति पर निर्भर करती है। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एनर्जी एट रेस्ट। किसी भी वस्तु की वर्तमान स्थिति पर उसकी स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। न्यूक्लियर एनर्जी इट इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय चेंजेस इन एटॉमिक न्यूक्लियस लाइक न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। Electrical energy. This energy based on the attraction, repulsion and movement of electrical charge. Chemical energy. Chemical energy based on the difference between amount required to form chemical bonds and how much amount of energy is needed to break them. बॉन्ड के बनने में कितनी ऊर्जा लग रही है, बॉन्ड के टूटने में कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, इसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ फ्यूल इनटू काइनेटिक एनर्जी वाया कंबशन। जब कंबशन होता है तो फ्यूल में प्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन एनर्जी इज लॉस्ट मीन्स जो एनर्जी हम लूज कर चुके हैं, जो हम खो चुके हैं, उसे हम दोबारा नहीं पा सकते, बल्कि उसका फॉर्म हम दूसरे रूप में पा सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट सोलार एनर्जी का यूज करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं कि वो जो सोलार एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, उस केमिकल एनर्जी को हम वापस सोलार एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, बर्निंग कोल। इट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। एक बार कोयला अगर जल जाता है तो वो आगे किसी भी प्रतिक्रिया को जारी नहीं रख सकता है। इतनी बात समझ में आई सबको? ओके, तो मॉड्यूल स्टार्ट करने के पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं।
तो हमने इस वीडियो से क्या सीखा और हमें क्या समझ में आया? This video told us that it is very important to conserve energy and how we can conserve energy. इस वीडियो ने हमें बताया कि एनर्जी को कंजर्व करना बहुत जरूरी है और हम कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन? So, energy conservation is the practice of reducing the quantity of energy used. It may be attained through efficient energy use or by reduced consumption of energy services.
So we can say energy conservation is the practice of reducing the quantity of energy used. Yeah, in other words, energy conservation is the reduction or removal of unnecessary or unwanted energy use. Energy conservation results in increase of financial capital, better environmental results, national security, personal security, and human comfort. Conservation of energy has to be the order of the day. Each and every one of us has to unite and collectively take action to preserve and conserve energy. Each one of us has to think, is there anything which I can do? Yes, there are many small ways in which we can contribute to save the energy. Now the objective of this course is to provide an introduction to energy systems and renewable energy resources with a scientific examination of the energy field and an emphasis on alternative energy sources and their technology and application. चलिए हम अपना मॉड्यूल 1 स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस। इस मॉड्यूल में हमें जो स्टडी करना है, इंट्रोडक्शन टू एनर्जी सिस्टम्स एंड रिसोर्सेज, इंट्रोडक्शन टू एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी एंड द एनवायरमेंट, ओवरव्यू ऑफ एनर्जी सिस्टम्स, सोर्सेज, ट्रांसफॉर्मेशंस, एफिशिएंसी एंड स्टोरेज। फॉसिल फ्यूल्स में हमें पढ़ना है कोल, ऑयल, ऑयल बेयरिंग शेल एंड सैंड्स, कोल गैसिफिकेशन। ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज में हमें पढ़ना है बायोमास, विंड, सोलर, न्यूक्लियर, वेव, टाइडल एंड हाइड्रोजन एनर्जी। Sustainability and environmental trade-offs of different energy systems. Energy storage systems में हमें pumped storage, hydropower projects, superconductor based energy storage and high efficiency batteries को स्टडी करना है। तो मॉड्यूल 1 के लिए हम जो स्टडी करेंगे वो कुछ सीक्वेंस वाइज करेंगे। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा एनर्जी सिस्टम्स, उसमें हम इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्स एंड नेचुरल एनर्जी सिस्टम को स्टडी करेंगे। सेकंड हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एनर्जी रिसोर्सेज रहेगा, जिसमें हम उसका डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। थर्ड जो टॉपिक रहेगा वो इंट्रोडक्शन टू एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड द एनवायरमेंट का रहेगा। नेक्स्ट इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, energy efficiency, energy storage, then fossil fuels, then alternative energy resources, sustainability and the environmental trade-offs of different energy systems. After that, energy storage systems or energy storage or regeneration. There will be 3 energy storage systems: pumped storage, hydropower projects, superconductor based energy storage and high efficiency batteries. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये पार्ट्स के फॉर्म में हम स्टडी करेंगे। Now introduction. Everything is based on the energy. Energy is the source and control of all things, all value and all the actions of human beings and nature. फेमस इकोलॉजिस्ट थे HT and EC ऑडम, उन्होंने 1976 में ये स्टेटमेंट दिया था।
Energy is central to achieving the interrelated economic, social, environmental aims of sustainable human development. लेकिन अगर हम इस रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि हम किस तरह से एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, तो अगर हम ये नहीं सोच पाएंगे तो हमारी नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्म होगा और साथ ही साथ इनइक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। Now, energy systems. एनर्जी सिस्टम्स को हम कह सकते हैं एनर्जी का प्रोडक्शन, कन्वर्जन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन। एनर्जी सिस्टम को एंड यूजर तक एनर्जी सर्विसेज की आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है। एनर्जी सिस्टम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिमेंडस इंक्रीज इन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। हालांकि यह स्पष्ट है कि वर्तमान में हम एनर्जी का प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ यूज नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें एनर्जी सिस्टम को प्रॉपरली समझने और परिमाणित करने की आवश्यकता है। An energy system is an interrelated network of energy sources and stores of energy connected by transmission and distribution of that energy to where it is needed. Energy systems developed by engineers are comprised of numerous components that work together to get the energy content of the energy resource converted into a form that is useful to the user and delivered to the customer. Energy systems incorporate energy efficiency, renewable energy, and demand-side management. Specific technologies and practices utilized in today's sustainable energy system include energy efficiency building and transportation systems, distributed energy systems, and smart grids. Energy systems that effectively integrated electricity and thermal energy, including from renewable energy sources, and incorporate controls and communication technologies to maximize demand-side energy efficiency, have several advantages. These include adaptability to changes in fuel availability, more effective utilization of low-value surplus energy and renewable energy, flexible integration of intermittent renewable energy, for example, through energy storage and reduction in peak loads. According to Brickner et al. 2014, एनर्जी सिस्टम जो है मेन एलिमेंट्स होते हैं, उसमें जो 4 एलिमेंट्स हैं वो हैं एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी कैरियर्स, प्रोसेसेस, एनर्जी डिमांड। Energy sources are main inputs to the system and need to be transformed for their end use. The energy carriers are transmitters of energy, occupying intermediate steps in the energy supply chain between primary energy sources and end-use applications. यहाँ ये जो हम फिगर देख रहे हैं, ये पूरी एनर्जी सप्लाई चेन है, जिसे हम एनर्जी सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे 7 ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स से हमारा एनर्जी सप्लाई चेन या एनर्जी सिस्टम स्टार्ट होता है, देन वो हमारा 7th ब्लॉक पर एंड होता है। सो ब्लॉक 1,
Block 1 represents mean inputs for the whole energy systems. Means primary resources हमारे क्या है? Raw material, जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जिनमें हम ऑयल यूज कर सकते हैं, गैस यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं जैसे विंड, सन, रेन, ट्रीज, और मिनरल्स के फॉर्म में हम कोल भी यूज कर सकते हैं. मींस प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स हमारा क्या है? जहां हम एनर्जी रिसोर्स को यूज करते हैं. ब्लॉक टू में रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग होती है. किस तरह हम रॉ मटेरियल को यूजेबल बना सकते हैं. So, block 2 represents the processing of raw materials to make them available or usable. जिसमें हम रॉ मटेरियल की एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और प्रोसेस करते हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो एनर्जी कैरियर में कन्वर्ट हो जाए, जिससे हम प्रॉपरली प्रोसेस करके एंड यूजर तक पहुंचा सकें. यहाँ जो हम इनपुट्स लेंगे, द इनपुट्स ऑफ दिस ब्लॉक विल बी रॉ एनर्जी सोर्सेस, और जो आउटपुट मिलेगा हमको इस ब्लॉक में वो रहेगा एनर्जी कैरियर्स, यानी ऐसा एनर्जी का फॉर्म जो एनर्जी कन्वर्जन के लिए तैयार होगा. ब्लॉक 3 करस्पॉन्ड्स कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ एनर्जी कैरियर्स. यहाँ किस कन्वर्जन प्रोसेस को हम यूज करेंगे एनर्जी कैरियर के लिए, वो रिप्रेजेंट्स होता है. इट डज नॉट इन्वॉल्व एंड यूज बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैरियर टू अनदर, फैसिलिटेटिंग द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ब्लॉक 4, यहाँ पर हम एनर्जी कैरियर्स को, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम जनरेशन साइड टू फाइनल कंज्यूमर, मेकिंग इट एक्सेसिबल फॉर द एंड यूज सर्विसेज. यहाँ हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपना एनर्जी जो हमारी कन्वर्ट हुई है, और 5th ब्लॉक तक हम इसको एंड यूज सर्विस तक एक्सेसिबल कराते हैं. ब्लॉक 5, this block represents the wide range of conversion technologies from house appliances to industrial machines, also including all the vehicles for transformation. ये एनर्जी सिस्टम का लास्ट प्रोसेस है जिसमें क्या है, एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज हमारी एंड यूज सर्विस डिमांड से रिलेट करती हैं. Block 6. Block 6 represents last link of energy system chain. It includes the energy service demands across all the sectors. Block 7 represents the gaseous emissions and waste. Here we can see natural energy system. Sun is the source of electromagnetic radiations. Plants absorbs energy and transform it through photosynthesis. Plants synthesizes carbon dioxide and water to form carbohydrates. Humans and animals consume plants as food, transfer the energy source into the body. Digestion acts as a transformation, causing the chemical breakdown of food by enzymes, then producing energy and work. This energy is stored in muscles and used to do work.
here, starting point of all energy in this food chain or energy chain, considering only the vegetables and cereal part of our food, is the sun. The transformation from stores of energy in food to work and subsequent dissipation of energy is an example of such a system. Now next topic is energy resources. A source from which useful energy can be extracted or recovered either directly or by means of conversion or transformation. For example, solid fuels, liquid fuels, solar energy, biomass. यानी ऐसा सोर्स जिससे हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकें और कन्वर्जन के थ्रू हम उसे एंड यूजर तक पहुंचा सकें, क्या कहलाता है? एनर्जी रिसोर्स. एग्जाम्पल के तौर पर हम सॉलिड फ्यूल्स ले सकते हैं, लिक्विड फ्यूल्स ले सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में सोलार एनर्जी एंड बायोमास एटसेट्रा. Now the classification of energy resource. There are many classifications of energy resource. First is classification of energy resource on the basis of usability. Classification of energy resource on the basis of traditional use. Classification of energy resource on the basis of availability. Classification of energy resource on the basis of application. Here we classify energy resource on the basis of usability, traditional use, availability and applications. A source from which useful energy can be extracted or recovered either directly or by means of a conversion or transformation is known as energy resource. So, classification on the basis of usability. Energy resources are classified into primary and secondary energy resources. Primary energy resources, for example, coal, oil, natural gas and wood and nuclear fuels. Secondary energy resources are gasoline, liquid fuels, refined, biofuels, electricity, hydrogen and heat. इनको हम आगे one by one discuss करेंगे. Now the classification on the basis of traditional use. Energy resources are of two types, conventional and non-conventional. On the basis of availability, non-renewable, renewable. On the basis of application, commercial, non-commercial. So first classification on the basis of usability. Primary energy resource. It can be used directly as they appear in natural environment. Coal, oil, natural gas, wood, nuclear fuels are the examples of primary energy resources. Primary energy resource वो resource होते हैं जो नेचर में वैसे ही यूज किए जाते हैं जैसे उनका जैसे वो अपीयर होते हैं, जिस फॉर्म में वो होते हैं उसी तरह से हम उन्हें यूज करते हैं. Secondary energy resources are derived from primary energy resources in the form of either final fuel or energy supply. For example, gasoline and liquid fuels, refined biofuels, electricity, hydrogen and heat. यहाँ हम देख सकते हैं इस डायग्राम में प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज क्या है हमारे पास. क्रूड ऑयल जो हम
जमीन से निकालते हैं। फॉसिल फ्यूल है क्रूड ऑयल, हार्ड कोल, नेचुरल गैस लिक्विड्स, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो सेक्शन है हमारा फॉसिल फ्यूल्स का है। तो ये नेचर में जैसे पाए जाते हैं उस हिसाब से इन्हें हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स। लेकिन हम इनका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे क्रूड ऑयल का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, से फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, टार। नेचुरल गैस भी दो प्रकार की होती है, सीएनजी एंड एलपीजी। न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज करते हैं हम वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में उसका कन्वर्जन होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम, थोरियम, these are the elements known as nuclear elements. So nuclear element से हम nuclear element is primary energy resource, लेकिन हम इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो क्या है, हमारी सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स। वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, हम बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो वेस्ट हमें नेचुरल फॉर्म में ही मिलता है जिसका कन्वर्जन हम हीट में करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स है। विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ओशनिक एनर्जी में वेव और टाइडल पढ़ेंगे हम। तो ये सारी एनर्जी प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो नेचर में हमें जैसे मिलते हैं उन्हीं को हम यूज करते हैं। लेकिन सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स जो होता है वो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स से ही डेराइव होता है। तो विंड एनर्जी हम काहे से बनाएंगे, विंड से बनाएंगे। तो विंड क्या है, हमारा प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स है, लेकिन विंड मिल से या एरो जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स। और सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज जो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज से डिराइव होते हैं उन्हीं का हम एंड यूजर तक कंजम्पशन के लिए प्रोवाइड कराते हैं। Now second, on the basis of traditional use. These are of two types. First is conventional. Conventional sources of energy are the natural energy resources which are present in a limited quantity and are being used for a long time. कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो एनर्जी रिसोर्स हैं जो नेचर में मिलते हैं लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और हम उनका बहुत पहले से लंबे समय से यूज करते चले आ रहे हैं। इनका ये जो है फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आते हैं। कोल, नेचुरल गैस, ऑयल आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। सेकंड इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। ये वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनका कॉन्टिन्यूसली रिप्लेनिश होता रहता है नेचुरल प्रोसेस से और ये कभी खत्म ना होने वाले हैं और कॉन्स्टेंटली ये जनरेटेड अगेन एंड अगेन होते रहते हैं और इनका यूज भी बराबर करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और भी कई प्रकार की एनर्जीज हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, नॉन रिन्यूएबल, ये वो रिसोर्सेज हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, नेचर में अवेलेबल रहते हैं लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में हैं। इन्हें हम बहुत जल्दी नया या रिप्लेनिश बहुत कम समय में नहीं कर सकते हैं। इन्हें हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं और फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लें हम तो कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और अपना न्यूक्लियर फ्यूल्स। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिन्यू होते रहते हैं नेचर के थ्रू टाइम टू टाइम, जैसे एयर, वाटर, विंड, सोलर, ये कभी ना खत्म होने वाले एनर्जी रिसोर्सेज हैं और प्रकृति इन्हें रिन्यू करती रहती है।
यहाँ मैंने एग्जांपल्स दी हुए, रिन्यूएबल में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल में न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल गैस, कोल, फॉसिल फ्यूल, ऑयल। लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। सो फर्स्ट इज कमर्शियल। कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स वो एनर्जी रिसोर्स होते हैं जो मार्केट में एक डेफिनेट प्राइस के साथ अवेलेबल होते हैं और इनका इकोनॉमी में, कंट्री की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कोल, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका मार्केट में इकोनॉमिक प्राइस कुछ डिपेंड नहीं होता है, जैसे फायरवुड है, कैटल डंग है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, गांव के लोग लकड़ियां इकट्ठा कर करके जलाते हैं, तो इनका जो है मार्केट में कोई डेफिनेट प्राइस नहीं होता है। ट्रेडिशनली गैदर करते हैं और अपने रूरल हाउस होल्ड में उनको यूज करते हैं। इन्हें हम ट्रेडिशनल फ्यूल्स भी कहते हैं। इनका एनर्जी अकाउंटिंग में योगदान नहीं होता है।